Hi guys, welcome again to the new basic learning, and today I am back with another video which is related to the tissue chapter, which was in the continuation of the topic. I will start today about the complex permanent tissue. So I request you, if you have not seen the part 1 of this chapter, so I have given in the link in the description box. You can go and check the link, and please see that video first, because this is in the continuation of the plant tissue. So I am going to start the topic, which is complex permanent tissue. I have done all the things which is related to the plant tissue. So if you have not seen the video, I have given in the link, the description box. You can go and check the link. So today we will be starting about the complex permanent tissue. So complex means that means it is made up of more than one type of cells. So first of all, we will learn about the two types of complex permanent tissue, which is xylem and phloem. बहुत टाइम से आपने ये xylem और phloem की जो फंक्शन है और ये पढ़ रखा होगा पहले से ही, लेकिन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. xylem का मेन फंक्शन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द xylem? दैट टू ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स यूनिडायरेक्शनली. व्हाट डज मीन यूनिडायरेक्शनली? यूनिडायरेक्शनली का मतलब होता है, सपोज दिस इज द ट्री, or you can say a plant. These are the roots. Okay. So here is the one leaf. Don't focus on my drawing, it's so bad. So let's focus on the topic which I'm going to clear you. Unidirectionally means these are the roots, and roots absorb water. So xylem is here only, means xylem will absorb the water, and the direction is unidirectional. That means upside. पानी जो आएगा एब्जॉर्ब होगा वो ऊपर ही तो जाएगा, ऊपर से नीचे थोड़ी ना आएगा. सो इट विल, द डायरेक्शन विल बी यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम डाउन टू अप. एंड देन वी विल टॉक अबाउट द फ्लोएम. फ्लोएम मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. इट ट्रांसपोर्ट्स फूड. फ्लोएम नेम से याद रखना, फ्लोएम, फ्लोएम फूड. ओके, फ्लोएम मीन्स फूड, xylem मीन्स वाटर एंड मिनरल. सो फ्लोएम का काम है टू ट्रांसपोर्ट फूड bidirectionally. Bidirectionally means from the upside also and downside also. मतलब खाना नीचे भी चाहिए होता है प्लांट के पार्ट्स को कुछ, और ऊपर भी, तो बाइडायरेक्शनल डायरेक्शन रहेगी उसकी प्लांट को फूड को ट्रांसपोर्ट करने की. देन xylem इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स. xylem जो है वो डेड सेल से बना हुआ है, एंड phloem इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स. And another thing is, xylem is made up of it consists of 4 types of cells. That means xylem parenchyma, xylem fibers, tracheids and vessels. So as I told you before, that complex permanent tissue, it comes under the category of complex permanent tissue. So it is made up of more than one type of cell. So here only xylem is made up of 4 types of cells, which is xylem parenchyma, xylem fibers, vessels and tracheids. Phloem is also made up of 4 types of cells, which is phloem fibers, phloem parenchyma, sieve tubes and companion cells. So let us learn about the first xylem parts. So now let's start about the tracheids and vessels. So tracheids and vessels, broad tubular structure. The shape is broad. Broad means chauda. Tubular structure, that means tube-like structure, like this. Okay, tubular structure, so that they can allow the transportation of water in the plants vertically. So that they can allow the transportation, जैसे कि transportation, water का जो transportation है, they can allow the transportation of water in the plants vertically. Vertically means ऐसे. Then xylem parenchyma, it stores food and help with the transportation of food horizontally in the plants. Okay. सो इसका मेनली काम क्या है? फूड को स्टोर करना एंड
ट्रांसपोर्टेशन मीन्स फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना. हॉरिजॉन्टली मीन्स ऐसे, मान लो ये कोई पार्ट है तो ऐसे ऐसे ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन हॉरिजॉन्टली कर सके प्लांट्स के अंदर, तो जिससे कि हर पार्ट जो है उसमें खाना आराम से पहुंच सके. देन जाइलम फाइबर्स, इट इज मेन फंक्शन इज टू सपोर्ट इन द फंक्शन. मतलब कि जाइलम का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन जो जाइलम का होता है उसमें सपोर्ट करना. जाइलम फाइबर्स, जाइलम का फंक्शन क्या था, हमने क्या पढ़ा था, दैट टू इट हेल्प्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर वर्टिकली, दैट मीन्स यूनिडायरेक्शनली. तो ये उसके फंक्शन में सपोर्ट करे. फाइबर्स, जाइलम का फाइबर उसमें हेल्प करता है उसके फंक्शन करने में. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द फ्लोएम पार्ट्स. So now we will start about the phloem parts, which is first of all we will understand about the sieve tubes. They are slender tube-like structure. Slender tube-like structure means cylindrical shape and tube-like structure. That means same only. Then the main function of sieve tubes is to transport sugar and nutrients up and down in the plants. Main function is to transport sugar and nutrients up and down in the sieve tubes, up and down in the of sieve tubes. Sieve tubes का main function क्या होता है, to transport sugar और nutrients का transportation में up and down in the plants. ठीक है, bidirectional means. Then companion cells से ही पता चल रहा है, companion, that means supportive. They facilitate the function of sieve tubes, मतलब sieve tube के function में सपोर्ट करना. देन फ्लोएम फाइबर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द फ्लोएम. फ्लोएम में जो लचीलापन है, जिससे लचीलापन, ठीक है, जिससे कि फूड जो है वो अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो हर जगह. ओके, देन फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर्स स्टार्च एंड प्रोटीन. इट मेनली स्टोर्स स्टार्च एंड प्रोटीन्स. देन नाउ वी विल मूव टू द अदर थिंग्स. सो नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट द एनिमल टिश्यू. बेसिकली हमने प्लांट्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है. फर्स्ट वीडियो में मैंने प्लांट के बारे में थोड़ा कवर कर दिया था. लास्ट का पार्ट रह गया था जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू था. देन आई हैव कवर्ड दिस आल्सो इन दिस वीडियो. सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट द एनिमल टिश्यू. एनिमल टिश्यू में बेसिकली हम अपने ही टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, बट एनिमल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट. सो नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट द एनिमल टिश्यू. एनिमल टिश्यू मेनली इट इज ऑफ 4 types, which is epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. So what is epithelial tissue? The main function of the epithelial tissue is to protect the outer layer. Outer layer से मतलब ये नहीं कि स्किन की जो outer layer है हमारी उसको प्रोटेक्ट करना. कोई भी ऑर्गन, कोई भी सेल या कोई भी आपका जो आपके ऑर्गन्स हैं उनके जो आउटर लेयर होती है उनको प्रोटेक्ट करना. दैट इज ओनली ऑन द फंक्शन ऑफ द epithelial tissue. Then connective tissue, that means it connects the bone to bone, for example, or muscle to bone, that in the category of the connective tissue. Then the muscular, contract and relax, that means muscular tissue, that means contract and relax. Okay, contract and relax में आपकी cardiac muscles भी आ जाती है. Okay, that we will study higher classes में जाकर कार्डियोलॉजी की ब्रांच में पढ़ेंगे. लेकिन अभी तक के लिए हमारे कोर्स में 9th के स्टैंडर्ड में सिर्फ इतना ही दे रखा है. आगे जाके हम डीपली इसके बारे में पढ़ेंगे 10th में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कवर द ओवरऑल व्यू ऑफ दिस एनिमल टिश्यू. देन नर्वस टिश्यू में हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू, दैट मीन्स द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. मतलब कि मान लीजिए आपकी नर्व सेल्स हैं ब्रेन में, उसको कोई भी नर्व सेल को आपके हाथ तक या आपके पैर तक कोई भी मैसेज पहुंचाना हो, दैट इज ओनली ऑन द फंक्शन ऑफ नर्व सेल्स. That means neurons also. You can say neurons also and nerve cells also. So now epithelial tissue is also of types, 5 types, which is squamous, cuboidal, columnar, ciliated, glandular. And इनके सबके बारे में भी हम पढ़ेंगे, don't take tension. Then connective में blood, lymph, bone, cartilage, areolar, adipose, ligament, tendon. ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी, don't take tension about all that. Then muscular, striated, smooth and cardiac. नर्व सेल्स में हम नर्वस टिश्यू में हम नर्व सेल्स के बारे में पढ़ेंगे. सो नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कवर अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू. सो नाउ लेट्स मूव टू द
simple epithelium tissue. That means it is present in the mouth and esophagus. That means food pipe. Food pipe की lines और mouth में जो हमारी lines है, it is present and that is squamous epithelium tissue. Then cuboidal, आपको इनकी ना थोड़े से डायग्राम दिखा देती हूँ मैं. क्यूबॉइडल का ये वाला डायग्राम है. क्यूबॉइडल सिंपल में हमने क्या देखा था, मैं आपको सिंपल भी दिखा देती हूँ. सिंपल में बिल्कुल सिंपल सी एक लेयर होगी. ओके, यू कैन सी हियर. एंड क्यूबॉइडल में क्यूब्स टाइप का स्ट्रक्चर है, लाइक दिस. ओके, देन कॉल्यूमनर में, कॉल्यूमनर मीन्स it is divided into columns. Okay, ciliated means hair like structure. Okay, so now cuboidal means present in salivary gland and lining of kidney tubules. It is present in the salivary gland and lining of kidney tubules. Kidney की जो tubes होती हैं उसकी linings में. Then columnar, present in the intestine of cilia. Sorry, intestine and cilia. It is present in the intestine and cilia, hair-like structure. Okay, for absorption only. Okay, then and in the respiratory tract. Then ciliated tissue, hair-like structure means इसका ciliated मतलब होता है hair-like structure. जैसे root hair देखते हैं हम. Okay, in the plant tissue root hair क्या करता है? Root hairs जहाँ पे होंगे, that means it absorbs the water. कुछ absorption के लिए root hair is there. So here also for absorption only, hair-like structure is that we called as ciliated. Hair like structure को हम बोलते हैं ciliated tissue. So it is only main purpose is to absorb. Okay, and granular, last में हम granular जो होता है वो mainly glands बोल सकते हैं, जैसे salivary gland हो गया. Okay, तो secretion of hormones, enzymes and sweat. तो sweat glands होते हैं कुछ, उनको secrete करना. Okay, in the secretion, it helps in the secretion of hormones, enzymes, sweat. Okay, so this we have done. Now let's move to the other things. So now we will start about the muscular tissue. Muscular tissue, it allows the movement of body due to the presence of contractile protein. It allows the movement of the body. मतलब हमारी muscles जो है, it provides the movement. हमारी body को movement provide करती है due to the presence of contractile protein. Contractile protein की वजह से भी. Then types, there are types for 3 types of muscles, which is smooth, skeletal and cardiac. अब मैं आपको इन सबको पॉइंट्स के थ्रू समझाऊंगी जिससे आपको हर चीज क्लियर हो जाए. ओके, अनस्ट्राइएटेड, अनस्ट्राइएटेड मीन्स जैसे मान लो एक मसल ऐसे है. ओके, स्पाइंडल शेप. ठीक है, स्पाइंडल शेप. Suppose this is the spindle shape. Okay, something like this. तो it is unstriated, मतलब यहाँ पे कोई lines नहीं है. Okay, skeletal में हम striated देखते हैं, मतलब इसमें lines हैं. ठीक है, lines present होती हैं. So इसमें कोई lines present नहीं होती है, इसकी स्पाइंडल शेप. और वैसे भी इसकी स्पाइंडल शेप है, मतलब स्पाइंडल शेप ऐसा होता है और इसमें कोई लाइंस नहीं है. ओके, इट इज इनवॉल्यूंटरी. मतलब इनवॉल्यूंटरी मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है. ओके, देन इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड. यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड है. मतलब कि यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब होता है कि इट इज मेड अप ऑफ 1 सेल एंड 1 न्यूक्लियस. मतलब एक सेल है तो एक ही न्यूक्लियस होगा इसमें. ओके, और अनब्रांच में इसमें कोई ब्रांचेस नहीं होती हैं. ओके, सपोज ऐसे आ गई ब्रांच, एक ऐसे आ गई, एक ब्रांच यहां से आ गई, एक ब्रांच ऐसे आ गई, तो ये कोई ब्रांच्ड वाला केस नहीं है. एक बार और देख लेते हैं. इट इज अनस्ट्राइएटेड, इसमें कोई लाइंस नहीं होती है. इनवॉल्यूंटरी, इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल. ओके, स्पाइंडल शेप होती है इनकी ऐसी. यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब 1 सेल ओनली 1 न्यूक्लियस. एक सेल है उसमें एक ही न्यूक्लियस होगा. ऐसे एक, मतलब यहाँ पे कोई सेल है तो यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस होगा और इसमें कोई ब्रांचेस नहीं होती हैं. स्केलेटल, स्ट्राइएटेड मतलब लाइंस हैं.
वॉल्यूमेंट्री, हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मेरा हाथ है तो मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं अपनी मर्जी से मोड़ सकती हूँ, अपनी मर्जी से सीधा रख सकती हूँ. ओके, तो इट इज वॉल्यूमेंट्री. देन सिलिंड्रिकल शेप, इनका जो शेप होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल होता है कुछ इस टाइप का. देन मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब एक सेल है उसमें काफी सारे न्यूक्लियस आपको उसमें प्रेजेंट होंगे, आपको दिखेंगे, मतलब दिखने के नहीं, उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे. अनब्रांच्ड, इसमें भी कोई ब्रांचेस नहीं है. देन कार्डियक, दैट मीन्स हार्ट मसल्स. कार्डियक मसल्स वो होती हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे बीटिंग ऑफ हार्ट की बीट हम कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है. इंटेस्टाइन, हम मतलब खाना खा रहे हैं तो उसमें जो डाइजेस्ट हो रहा है वो हम कंट्रोल में नहीं कर सकते, डाइजेस्टिव सिस्टम हम कंट्रोल में नहीं रख सकते. अगर हमें खाना खाना है वो पचेगा तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो दैट इज ऑल इन वॉल्यूमेंट्री. देन इट इज सिलिंड्रिकल इन शेप, इनका जो शेप होता है वो सिलिंड्रिकल होता है. यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब एक सेल है तो एक ही न्यूक्लियस है. और ब्रांच, इसमें ब्रांचेस होती हैं जैसे इस टाइप में. ओके, ये ब्रांचेस होती हैं. सो मस्कुलर टिश्यू हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू. सो नाउ वी विल स्टार्ट द कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू नाम से पता चल रहा है कनेक्ट्स. ओके, तो इनका मैनर एक तरह से सेल्स आर एम्बेब्ड, मैनर होता है सेल्स आर एम्बेब्ड. एक तरीका आप कह सकते हैं सेल्स आर एम्बेब्ड, मतलब कि मान लीजिए ब्लड है, ब्लड का जो मैट्रिक्स है वो प्लाज्मा है. ठीक है, ब्लड के अंदर जितनी भी पार्टिकल्स हैं, मतलब WBC और प्लेटलेट्स हो गया, प्लाज्मा हो गया, तो इन सब के अंदर जितने भी है प्रेजेंट हैं चीजें, उन सबको कनेक्ट करने में, मतलब कि उन सबको जोड़े रखने में उसको हेल्प करता है. देन बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो होता है कैल्शियम और फॉस्फेट, जो कि सॉलिड स्ट्रक्चर होता है. मतलब कैल्शियम और फॉस्फेट जो होता है बोन के अंदर, मैट्रिक्स जो होता है वो सारा कैल्शियम और फॉस्फेट होता है जो कि सॉलिड स्ट्रक्चर होता है. देन टेंडन में, पहले हमने देख लिया, सेकंड हमने देख लिया, टेंडन है कनेक्ट बोन टू मसल. टेंडन जो होता है, ठीक है, आपको यहां देखने के लिए मिलेगा. जैसे ये है तो ये आप जैसे ही अपना ऐसे करते हैं हाथ, तो ये चीजें, ये वाली लाइंस, ये टेंडन होती हैं. अगर आपकी ये चीज कट जाती है तो आपका जो थंब है या फिर आपकी जो फिंगर्स हैं वो मूव नहीं कर पाएगी. ठीक है, आपकी फिंगर मूव नहीं कर पाएगी, मतलब आप कहीं भी ऐसे नहीं कर सकते, इधर उधर नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये कट जाएगा तो फिर आपका जो थंब है या फिर कोई भी वो है पार्ट, वो मूव नहीं कर पाएगा. तो ये कनेक्ट क्या करता है, बोन टू मसल, क्योंकि ये बोन से मसल को कनेक्ट कर रहा है. तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये कट जाएगा तो फिर कहाँ मूवमेंट होगी. और इसका एक सिंबल, शॉर्ट फॉर्म दे सकते हैं आप, या फिर आप इसको एक तरीके से याद रख सकते हैं MTB. MTB मतलब मसल टेंडन बोन, मसल टेंडन बोन. ठीक है, मसल टेंडन बोन, आपको याद रख लेना है, बहुत काम आती हैं ये चीजें, ध्यान में रख के चलिएगा सारी चीजों को. मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपकी जो चीजें, मतलब आप जो चैप्टर में चीजें पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाए. आप कहीं भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पुट अप करे तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकें. तो इसलिए मैं आपको इजी और सिंपल लैंग्वेज में इसलिए पढ़ा रही हूँ. मेरा मकसद सिर्फ यही है पढ़ाने का, जिससे कि आपको चीजें जो है वो एकदम क्लियर रहे दिमाग में, आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए. तो अब देख लेते हैं लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन, BLB मतलब बोन लिगामेंट बोन. इसका सिंबल भी आप याद रखिएगा, ये बहुत काम आती है, MTB एंड BLB. देन इट कनेक्ट्स बोन टू बोन, बोन से बोन को कनेक्ट करना. लेकिन अगर आपका लिगामेंट कट जाएगा तो फिर बोन में मूवमेंट नहीं आएगी, मतलब बोन मान लीजिए यहाँ पे, तो लिगामेंट अगर नहीं रहेगा तो बोन नहीं आपकी इधर उधर नहीं हो सकती. तो इतना हमने देख लिया है. इसके बाद की जो पॉइंट्स है वो देख लेते हैं. सो नाउ लेट्स सी द कार्टिलेज. इट प्रोवाइड्स स्मूथनेस ऑन द सरफेस ऑफ द बोन. जो आपकी बोन है उसके ऊपर जो सरफेस होता है उस पर जो स्मूथनेस आती है वो क्या होती है, कार्टिलेज होता है. ओके, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द कार्टिलेज ओनली. देन एडिपोज
फैट सेल्स आर कॉल्ड एडिपोज. मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा फैट है तो उसके अंदर जितने भी फैट सेल्स हैं वो कहलाते हैं एडिपोज. देन एरियोलर, बिलो द स्किन रेड लेयर इज कॉल्ड एडिपोज. मान लीजिए ये स्किन है आपकी, ये हेयर्स है, सीलिया. ओके, इसके नीचे ये स्किन है आपकी, दिस, ये सीलिया. ओके, इसके नीचे आपकी एक रेड लेयर प्रेजेंट होती है यहाँ, इसे बोलते हैं हम एरियोलर. ओके, देन लिम्फ. अगर मान लीजिए ब्लड है, उसको किसी सेल में कोई मटेरियल या फिर कोई न्यूट्रिएंट या फिर कुछ भी पहुंचाना हो तो उसके बीच में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसे हम लिम्फ बोलते हैं. ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? लिम्फ. तो इतना हमारा हो गया है. अब देख लेते हैं नर्वस टिश्यू. तो अब लास्ट में हम देख लेते हैं नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स. It is specialized to conduct the signals in the form of electrical impulses. That means electrical impulses मतलब कि कोई मैसेज कंडक्ट करना हो कि ब्रेन, आपकी नर्व सेल्स को, ब्रेन में जो प्रेजेंट होती हैं नर्व सेल्स, उनको कंडक्ट करना हो मैसेज पैर तक या फिर हाथ तक, तो वो जो मैसेज कंडक्ट करने का काम होता है वो क्या होता है? न्यूरॉन्स का. न्यूरॉन्स मतलब नर्व सेल्स ओनली. ओके, तो नर्वस टिश्यू किससे बना है? ऑब्वियस सी बात है, न्यूरॉन से बना हुआ है. तो एक बार डायग्राम देख लेते हैं नर्व सेल का, दैट मीन्स न्यूरॉन. तो ये क्या होता है? सभी को पता है ये न्यूक्लियस होता है. ये जो ब्रांचेस आपको दिख रही हैं ये होती है डेंड्राइट. ओके, और ये पूरी बॉडी जो होती है इसकी से कहते हैं साइटन, सेल बॉडी. ठीक है, देन इसके बीच में पहले तो देख लेते हैं ये होता क्या है? इट इज अ श्वान सेल. इसके बीच में जो ये आपको दिख रहा है स्पेस, इसे कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर. देन श्वान सेल के ऊपर जो लेयर होती है ब्लैक कलर की जो प्रोटेक्ट करती है, दैट वी कॉल्ड एज द माइलिन शीथ. और ये पूरी जो बॉडी मतलब कि इसकी सिर्फ यहां तक का पार्ट, इसे कहते हैं हम एक्सन. ओके, लास्ट का पार्ट जो होता है एक्सन का वो होता है एक्सॉन टर्मिनल. इसके फिर इसके बाद यहाँ पे एक और नर्व सेल होता है. ओके, तो एक्सॉन टर्मिनल किसे कहते हैं? जो लास्ट पार्ट होता है सेल बॉडी का, दैट मीन्स साइटन का. तो नर्वस टिश्यू भी हो चुका है कंप्लीट. अब जो है हमारा जो चैप्टर है पूरा टिश्यू, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, वो पूरा समाप्त हो चुका है, पूरा खत्म हो चुका है. हमने 9th स्टैंडर्ड का 9th के सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया टिश्यू का चैप्टर. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा चैप्टर लाऊंगी. और तब तक के लिए इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो as much as you can, and please subscribe my channel and hit the bell icon to get the more latest updates. So for the next part, stay happy and stay tuned. Thank you for watching.